بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس السادس جو کہ مرکبات کے متعلق ہے، اس میں ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں۔ آج مرکب اضافی کا جزء الخامس والاخیر ہے۔ آگے جانے سے پہلے پچھلے سبق کا ایک مختصر سا خلاصہ کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی سے سبق اور حل کا استعمال سیکھا، ان کے قواعد سیکھے، مختلف امثلہ سے ان کے جو ہے ان کے متعلق جانا، ان کی تبدیلیوں کو دیکھا۔ اس کے آج کے درس میں ہم مرکب اضافی سے جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے۔ آگے جانے سے پہلے جملہ اسمیہ اور اس کے اجزاء کا مراجعہ مرتبہ پھر کر لیتے ہیں۔ پچھلے دروس میں میں نے آپ کو اس کا مراجعہ کر کے بتایا تھا۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جس کا ابتدا یا جس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ عربی میں دو طرح کے ہی جملے بنتے ہیں، جمل اسمیہ و جمل فعلیہ۔ جمل اسمیہ جو ہوتے ہیں اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، دو بڑے اجزاء جو کہ مبتدا اور خبر کہلاتے ہیں۔ مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے کی جملہ اسمیہ کی ابتدا کرتا ہے، اور خبر اس کا آخری حصہ ہوتا ہے جو کہ اس کی انتہا کرتا ہے یا اس کے متعلق خبر دیتا ہے۔ عربی میں چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہیں، ہوں، ہو وغیرہ جیسے الفاظ نہیں پائے جاتے کہ جملے میں ہوتے ہیں نا، ہمارے اردو کے جملوں میں ایسے ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں ہیں، یا احمد نیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں وہ عربی میں نہیں ہوتے، تو انہیں عربی میں ڈالنے کے لیے، عربی جملوں میں بتانے کے لیے، جملہ بنانے کے لیے ہمارے پاس قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے نا، اعراب کے لحاظ سے اسے مرفوع رکھتے ہیں، خبر کو مرفوع رکھتے ہیں۔ عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے۔ فصد کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کو معرفہ رکھتے ہیں اور اس کی خبر کو نکرہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے ذہن میں اس ترتیب کو بٹھا لینا ہے۔ یہ جمل اسمیہ کے جو قواعد ہیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آگے جا کر آپ نے جب جملوں کا ترجمہ کرنا ہے یا جملے بنانے ہیں تو مبتدا اور خبر کا تعین کرنا پڑے گا۔ یہاں دیکھیں مبتدا جو ہے اس میں وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وسعت کے لحاظ سے صرف معرفہ ہے اور اس کی خبر نکیرہ ہے۔ آپ جمل اسمیہ جو ہیں ان کو اور مرکبات جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو آپس میں ضم نہ کریں۔ مرکبات کے الگ قواعد ہیں اور جملہ اسمیہ کے الگ قواعد ہیں۔ مرکبات جملہ اسمیہ کا ہی حصہ ہوتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں پارٹ آف دا سینٹینس۔ وہ جملہ نہیں ہوتے، ان سے جملے بنتے ہیں، ان کے ایک الگ قواعد ہوتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف وسعت کے لحاظ سے مبتدا، معرفہ اور اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ لکھی جاتی ہے، باقی تینوں پہلوؤں کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے اور وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اعراب کے لحاظ سے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے مبتدا اور خبر کی دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی سے ہم نے پچھلے اسباق میں جمل اسمیہ بنائے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب توصیفی سے مختلف طرح کے جملے سیکھے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہوتا ہے جس کے اگر پہلے حصے کو جو کہ موصوف کہلا رہا ہے یہاں پر ولد ہے، اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، صفہ اس کے بعد میں لکھی جاتی ہے مرکب توصیفی میں، تو پھر ہم موصوف کو معرفہ ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کی خبر کو نکرہ بنا دے تو جملہ آرام سے بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا مختصر سادہ سا جملہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارے جو جملہ اسمیہ کا قاعدہ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے منفی یا اس کے اندر یا تاکیدی یا منفی یا سوالیہ انداز بنانے ہیں، اگر اسی جملے کو آپ نے یہ معنی پیدا کرنے ہیں مثبت جملے کے اندر، تو ہم لیسا کے علاوہ جو ہم نے سیکھے تھے اور انا اور اس کے بھی جتنے خبرات سیکھے تھے، اگر ان کو جملے کا حصہ بنا دیں تو ان کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی رجا بھی آ جاتا ہے جملے کے اندر، ترجی جسے کہتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ یعنی تمنا بھی کے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ان قواعد کو مد نظر رکھیں جو قواعد آپ کو سکھائے ہوئے ہیں کہ لیسا کے لگنے سے
ہم نے اگر جملہ اپنا بنایا ہے اگر اس میں لیسا لگ گیا شروع میں تو اس کی جو ہے مبتدا اور خبر جو ہے اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان سے کیا ہوتی ہے. اس طرح کے آگے بھی قواعد سیکھیں گے ہم، لیکن پہلے ان مختصر سے قواعد کو اپنے ذہن میں رکھیں. آگے جانے سے پہلے آپ کے جو ذخیرہ معلومات ہیں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہوں، تو ان طریقوں سے کہ آپ یہ طریقے آپ کو اس لیے سکھایا جا رہا ہے، یہ مزید اضافہ اس لیے کیا جا رہا ہے آپ کی معلومات میں، تاکہ آپ کو آگے جا کر جملہ بنانے، اسے سمجھنے اور سیکھنے میں یا اس کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. مبتدا کو آپ ان تمام صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی خبر کو دیکھیں. مبتدا کو اگر آپ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ظاہر میں مرکب کے طور پر بھی ہوگا، مفرد کے طور پر بھی ہوگا. مرکب آپ کا مبتدا جو ہے وہ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام، اسم اشارہ اور مصدر معمول بھی ہو سکتا ہے. مصدر معمول ایک طریقہ کار کلام ہوتا ہے، یہ ہم علم الصرف میں لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ورب استعمال ہو رہا ہے، فاعل استعمال ہو رہا ہے. نہیں وہ انت صبح خیر لکم، اگر تم روزے رکھو تمہارے لیے خیر ہے. اس میں خیر لکم اگر ہم کہتے ہیں السلام خیر لکم تب بھی یہ بات اصل میں ٹھیک تھی. تو اگر ہم نے مصدر معمول کے طور پر اس جملے کو لیا تو اس طریقے سے لیا. قرآن کا انداز ہے یہ، تو اس پہ ہم آگے جا کر بحث کریں گے. اب دیکھیے اس میں شرط ہے جو مانا ایمان لانا کہتے ہیں نا، مانا کہتے ہیں مومن جو ایمان لایا سادو کیا ہے، خوش ہے. من فاز بالجائزہ، کس نے جائزہ جو ہے گفٹ جو ہے وہ جیتا. اس طرح کے جو جملے ہیں آپ اسماء موصول سے بھی دیکھ سکتے ہیں جملے کے شروع میں. تو یہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ نے جملوں کا ترجمہ کرنا ہے، وہ جملے بھی بنانے ہیں. اور اسی طرح خبر جو ہے وہ بھی مختلف طرح کی آپ پائیں گے. مفرد بھی جملے کی صورت میں، اسی طرح خبر خوشی بھی جملے کی صورت میں بھی دیکھیں گے. اگر آپ مثالوں میں دیکھیں طائف جمیل، یہاں پر دیکھیں یہ مرکب توصیفی، اگر اس کو بنا دیا طائر الجمیل صورت پرندہ، تو اس سے دیکھیں جملہ ایک آسانی سے بنایا ہوا ہے. طائر الجمیل مبتدا سے بنا دیا، خبر سے بنا دیا. خبر دیکھیں مفرد کی صورت میں ہے اور یہاں پر وہ ہے رفع میں ہے. اگر آپ اس اگلی مثال کو دیکھیں الطائر منظر جمیل، منظر جمیل یہ ایک جملہ ہے، یعنی اس کا منظر خوبصورت ہے. اگر ہم اس جملے کو، یہ جملہ اسمیہ ہی ہے، اس کا منظر خوبصورت ہے، منظر جمیل، اس کو ہم خبر کے طور پر لے آئے اور اس کی جو ہے اس کا اس کو طائر کر دیا، طائر منظر جمیل، تب بھی یہ جملہ بن جائے گا. اور ہماری جو خبر ہوگی وہ جملے کی صورت میں، جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ کی صورت میں اگر خبر ہے تو اس پر ہم بحث آگے جا کر کریں گے. آگے دیکھیں الطائر فی عشی، الطائر فوق الشجرہ، یہ شبہ جملہ ہوتا ہے، جس جملے کے اندر حرف جر اور ظروف پائے جائیں وہ کیا ہوتا ہے، شبہ جملہ ہوتا ہے. اور شبہ جملے کی صورت میں بھی آپ خبر کو دیکھ سکتے ہیں. الطائر فی عشی، پرندہ گھونسلے میں ہے. الطائر فوق الشجرہ، پرندہ درخت کے اوپر ہے. تو یہ شبہ جملے کی صورت میں بھی آپ خبر کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی میں نے انواع لکھ دی آپ کو، مبتدا کی بھی اور خبر کی بھی، آپ کی آسانی کے لیے. آگے جانے سے پہلے مرکب اضافی سے جملہ اسمیہ بنانا سیکھتے ہیں. آپ یہاں پر سب سے پہلے ہم یعنی آگے جمل لینے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرکب اضافی مرکب توصیفی کی طرح توڑا نہیں جاتا. مرکب اضافی جو ہے ایک دوسرے سے مضاف ہے وہ ہم خراب نہیں کر سکتے. اس کو ہم لوگ مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے. یا تو مرکب اضافی پورا مبتدا بنتا ہے یا مرکب اضافی پورا خبر بن جاتی ہے. تو اس کے اندر ہے کہ معنی لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تیسرا لفظ جو ہے اس کا اضافہ کر لیتے ہیں. اگر اسے مبتدا بنانا ہے تو اسے معرفہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جملہ اسمیہ کا قاعدہ ہے. اگر اس تیسرے لفظ کو آپ نے خبر بنانا ہے، یعنی مرکب اضافی کے بعد لگانا ہے، تو اس کو نکرہ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے مرکب یہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کا قاعدہ ہے. دیکھیں پچھلے سبق میں جتنی بھی مثالیں ہم نے دی تھی وہ مرکب توصیفی سے دی تھی. اب کی ہم اس درس میں مرکب اضافی سے تمام جملے بنانا سیکھیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جملوں کا جب عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو پہلے خبر کا ترجمہ کریں، پھر خبر کا ترجمہ کریں. اسی طرح اگر اصلی جملہ بنانا عربی میں جملہ لکھنا ہے تب یہ آپ مبتدا کریں، اس کے خبر کو ہم بعد میں لکھیں. ٹھیک ہے نا. اور قاعدہ وہی رکھیں جو آپ کو بتا دیا ہے، صرف وسعت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہے، باقی تمام یعنی حالت کے اعتبار سے وہ
हालत रफा में है, वसत और माफ कीजिएगा जिन्स के मदद के लिहाज से नहीं होता, खुद होती है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे जुम्मे लेने से पहले एक बात को दोबारा दोहरा दूं, इस बात को कि मुब्तदा अमूमन मारिफ और उसकी खबर जो होती है वो नकीरा होती है। पहली हम मिसाल लेते हैं, मुब्तदा हमने अलवलद ले लिया है, उसकी खबर हमने बैन शजरतैन ले ली। अब देखें, मुब्तदा हमने मारिफा के तौर पर मारिफा बना दी और उसकी खबर जो है वो नकीरा में ले ली, तो जुमला हमारा बना अलवलद बैन शजरतैन, दो दरख्तों के दरमियान है। अगली मिसाल देखें, हमने मुरक्कब नाक़िस जो है वो पहले मुब्तदा बना दिया उसको, और तीसरा लफ्ज़ जो हमने लिया था वो उसे हमने क्या किया, खबर के तौर पर ले लिया। तो मुब्तदा जब हमने बनाया मुरक्कब नाक़िस को, तो उसे हमने मारिफा लिखा किताबुल्लाही, और उसकी जो खबर थी उसको नकीरा कर दिया नून। लेकिन हम ये आप देखें कि हमने अपने कायदा जो है जुमला इस्मिया का उससे बाहर नहीं गए, उसके अंदर ही रह के हमने ये जुमले बनाए, मुरक्कब इताफी का इस्तेमाल किया इसके अंदर। आगे देखें, मुब्तदा जो है हमने अल्लाह लिया और उसकी खबर देखें मुरक्कब नाक़िस, लेकिन यहाँ देखें मालिकु यौमिद्दीन, यहाँ देखें मुरक्कब नाक़िस जो कि इदाफी है वो तो लिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा मुरक्कब इदाफी है जिसके अंदर एक कलीमा जो है मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों बन रहा है। तो इसमें क्या है कि ऐसा भी मुरक्कब इदाफी हम ले सकते हैं, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, अल्लाह मुब्तदा का तर्जुमा पहले हुआ, मालिक यौमिद्दीन या बदले के दिन का मालिक है। आगे देखें, हमने इन्ना ले लिया जो कि हर्फ मुशब्बह बिलफ़ाइल है, और उसकी तब्दीली क्या होती है कि ये अपने इसम को क्या कर देता है, मंसूब कर देता है, और अपनी खबर को क्या करता है, मरफ़ू कर देता है, हालत रफ़ा में ले जाता है। तो खबर तो वैसे भी हालत रफ़ा में होती है। अब अगर इन्ना लगा दें हम और ऐसा जुमला बनाए जिसके अंदर मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है, तो क्या होगा, इन्ना आयातिल्लाहि बय्यिनातुन, बेशक अल्लाह की आयात वाज़ेह है। तो देखें, इन्ना की वजह से इसम इन्ना आयातिल्लाहि हो गया, और आयात में जो हमारा ये क्यों नहीं मंसूब हो रहा, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम की हालत नस्ब जो होती है वो मजरूर बिल कसरा, यानी वो हालत नस्ब में कसरा लेता है, ये ज़हन रखें, इसलिए यहाँ पर आयातिल्लाहि आया। अगली मिसाल में आप देखें, हमने मुब्तदा लैसा लिया है और लैसा का जो इसम इन्ना है वो क्या है, अल्लाह, और उसके बाद खबर जो इन्ना की लैसा की जो खबर है वो वली अलकाफिरीन, क्योंकि जब लैसा लगाया जाता है तो अपने इसम को मरफू और अपनी खबर को मंसूब कर देता है, लैसल्लाहु वली अलकाफिरीन। तो ये हमारी, अगर हम अल्लाह वली अलकाफिरीन करते, ये हमारा जुमला था, लेकिन हमने लैसा लगा दिया, तो लैसा ने अपने इसम को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन अपनी खबर को हालत रफा नसब में ले गया। मजीद आगे देखें, अभी हम इस्तिस्ना के दो कायदे जिनको हम लोगों ने पिछले असबाब में लिया था, कौन कौन से थे। इस्तिस्ना के कायदे होते हैं ऐसे कायदे जो कि हट के अपने उसूल के मुताबिक नहीं चलते। अब हमने यहाँ पर कई दफा ऐसा होता है कि जब हम लोग लेते हैं अना यूसुफ, देखें मुब्तदा भी मारिफा है, खबर भी उसकी मारिफा है, और अना यूसुफ भी जुमला बन रहा है, मैं यूसुफ हूँ, लेकिन दोनों मारिफा। इस्तिस्ना का कायदा है, वो कायदा टूट गया जुमला इस्मिया का, जिसमें हमने सीखा था कि मुब्तदा मारिफा और उसकी खबर जो है वो नकीरा होनी चाहिए। यहाँ पर हम कैसा जुमला बना रहे हैं, अब ये इस चीज का इतलाक दूसरे जुमलों पर नहीं हो सकता, ये कुछ जुमलों के लिए मखसूस है ये इतलाक, ये इस्तिस्ना का कायदा। अगले इस्तिस्ना के कायदे को देखें, मुब्तदा मसाजिद है, उसकी खबर जो है वासिया है। अब आप यहाँ सवाल ये होता है, आता है कि मसाजिद जो है ज्यादा है, तो जमा में है, तो इसमें यहाँ पर क्यों नहीं खबर इसकी उसके लिहाज से, अदद के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से मुताबिकत कर रही है अपनी मुब्तदा के साथ। तो यहाँ पर भी इस्तिस्ना का कायदा है, और वो ये है कि जब भी का मुब्तदा अगर जमा गैर आकिल की जमा तकसीर है, तो उसकी खबर जो होगी वो क्या आएगी, मुफरद, क्या मुफरद मुअन्नस आएगी। अगर वो मुरक्कब इजाफी तौसीफी की सूरत में अलमसाजिदु अलवासिअतु, ऐसे भी कह सकते हैं, मसाजिद जो है वो वसी वसी मसाजिद, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हम उसकी जो खबर के तौर पे ले रहे हैं, उसको सिफा के तौर पर ले रहे हैं गैर आकिल की, तो दोनों सूरतों में गैर आकिल की ये जो सिफा होगी वो क्या होगी, मुफरद मुअन्नस होगी। हमारा इस्तिस्ना का कायदा जुमला इस्मिया का अपना कायदा तोड़ देता है वो यहाँ पर।
अब यहाँ हम दो मजीद इस्तिस्ना के कायदे सीखेंगे, और वो ये है कि अगर कोई मुरक्कब नाक़िस अगर खबर बनकर आ रहा हो तो ऐसी सूरत में खबर मारिफा भी हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, आपका मुब्तदा जो है वो इताअत और रसूल है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और रसूल जो है अल्लाह मारिफा में इताअत जो है वो हमारा मुताब जो है वो भी क्या हो गया, मारिफा हो गया, इताअतुल्लाह। तो यहाँ पर देखिए खबर जो है, खबर का ये जो मुताबिल है ये मारिफा है, तो इसकी मुताब जो है वो भी मारिफा। देखिए एक दो तरह की चीजें सीखी हैं इसमें। एक तो ये कि मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मिलकर जुमला बना सकते हैं। इताअतुल्लाह, इताअतुर रसूल, इताअतुल्लाह, बन गया जुमला। एक चीज तो ये सीखी कि दो मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाक़िस, हमने पिछले सबक में मुरक्कब तौसीफ़ी लिए थे ना, मुब्तदा और खबर के तौर पर, वो दो मुरक्कब तौसीफ़ी भी जुमला बना सकते हैं, इसी तरह जो दो मुरक्कब इज़ाफ़ी भी जुमला बना सकते हैं। तो हमने देखें ये जो इस्तिस्ना का कायदा हम जिस पे बात कर रहे थे यहाँ पर कि मुब्तदा जो है अगर मारिफा है तो उसकी खबर भी मारिफा आ सकती है। ठीक है, तो अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह जहाँ का रब है। इसी तरह देखें दोनों मारिफा, अब देखें खल्फ मुतकाबिला थी, काबिला के पीछे वलदुन, दोनों क्या हो गए, नकीरा में आ गए। देख सकते हैं इससे भी जुमला बन सकता है। जुमला ये इस्तिस्ना का कायदा है, कायदे हैं ये तो, ये अपने उस जो जुमला इसमें का कायदा उससे हट कर है उसको हटा देते हैं। आगे देखें हम क्या है, जुमला इसमें का उसूल है कि मुब्तदा मुक़द्दम और खबर जो है मुअख्खर लिखी जाती है। मुब्तदा को पहले लिखा जाता है, उसकी खबर को बाद में लिखा जाता है। मगर बाज़ औक़ात क्या होता है, कुरान में भी ये तरज़ है, तर्ज़ कलाम है अल्लाह ताला का, कि कई दफ़ा ऐसा होता है खबर मुक़द्दम हो जाती है और उसकी जो मुब्तदा है उसका वो मुअख्खर हो जाता है। मैं आपको 4 सूरतें बता देती हूँ उसकी। 2 सूरतें मतलब बड़ी आसान सी हैं, मतलब चारों ही आसान है वैसे तो। अब देखिए खबर मुक़द्दम है फ़िस्सिद्क़ी अन-नजात, तो क्या है, सच में कामयाबी है। ठीक है, अन-नजात फ़िस्सिद्क़ी ये भी हो सकता है, फ़ी बैतिन रजुल, हमारे घर में एक आदमी है। ये 2 सूरतें हैं, यानी शिब्ह जुमला शुरू में आ रहा है और जबकि खबर है वो मुक़द्दम हो गई है और पहले में मारिफा और दूसरे में नकीरा के साथ। ठीक है ना, दोनों नकीरा। आगे चलते हैं, सूरत नंबर 3 है इसकी, खबर मुक़द्दम की के मता इसमें इस्तिफ़हाम भी लगा लें अगर, तो खबर मुक़द्दम हो जाती है, और नस्रुल्लाह, मता नस्रुल्लाह, तीसरी सूरत आ गई इसकी। चौथी सूरत आप देखें कि अगर हम खबर मुक़द्दम में मुरक्कब जारी लगा लें, लिल-हुर्रिय्यति क़ीमतुहा, आज़ादी के लिए उसकी कीमत होती है। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं, कई दफ़ा हमारी खबर जो है वो मुक़द्दम हो जाती है। ये इसकी अमसिला नहीं देंगे अभी, बस आपके थोड़ी मालूमात में इज़ाफ़ा है, इसे ज़हन में रखिएगा, आगे जाकर मुश्किल ताकि पेश ना आए, इस पर मज़ीद आगे काम करेंगे, मज़ीद बहस करेंगे। आइए इन जुमलों में देखते हैं मुब्तदा और खबर कहाँ है। अल्लाह तमाम जहानों का रब है। देखें अब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अल्लाह, अगर हम उर्दू में देखें अल्लाह तमाम जहानों का रब है, अल्लाह आगे सोचते हैं क्या है अल्लाह, आगे सवाल आता है ना, क्या है, क्या तारीफ होने जा रही है आगे, तो हम कहते हैं अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब है। आगे अगर देखें हम यहाँ पर, यहाँ देखें तमाम जहानों का रब क्या है, सवाल, इसमें सवाल किया गया ना, तमाम जहानों रब्बुल आलमीन, पहले मुब्तदा का तर्जुमा कर लिया, गफूर बहुत बख्शने वाला है, उसकी खबर हो गई। अगले जुमले को देखें, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है, रअसुल हिकमती इब्तिदा है मखाफतुल्लाह, कोई इस्तिस्ना का कायदा आ गया, दोनों मारिफा में आ गए, दोनों मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं यहाँ पर। अब ये देखें कुरान अल्लाह की किताब है, अल कुरान किताबुल्लाह, दोनों मारिफा में आ गए, इस्तिस्ना का कायदा हो गया इसके अंदर, इब्तिदा कुरान किताबुल्लाह उसकी खबर है। अल्लाह का रसूल सच्चा है, रसूलुल्लाह सादिक़ुन, यहाँ नकीरा में कर दिया हमने इसको, यहाँ पर अपना जुमला हमारा इसमें आता है, हमारा उसका कायदा यहाँ पर हमने ले लिया। मुब्तदा हमारा रसूलुल्लाह ही मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में है, आगे से उसकी खबर जो है वो नकीरा है, सादिक़ुन, तुम दोनों का रब आसमानों का रब है, तुम दोनों का रब रब्बुहुमा रब्बुस समावाति, इसकी खबर होगी। अरब मुसलमानों के घर खूबसूरत है। देखिए ये जुमला आ गया ना, अब इसमें आप देखिए तय्युन करें मुब्तदा का, अरब मुसलमानों के घर, ये बनता है मुब्तदा। सोचें, सवाल किया करें अपने जगह पे,
पूरा जुमला पढ़ते हैं, आप तुझसे सवाल किया करें अरब मुसलमानों के घर, अगर खबर को ना देंगे क्या है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नए हैं, पुराने हैं, तो ये इससे तयन हो जाता है कि हमारा मुब्तदा यही है। तो उसका तर्जुमा किया हमने बुयूतुल मुस्लिमिल अरबी, आगे है खूबसूरत है जमील, तो ये उसकी खबर है। ठीक है, देखिए बुयूतुल मुस्लिमिल अरबी की वजह से पता चल गया कि ये हमारा मुब्तदा जो है मारिफा है, और जुमला जो है वो खबर है हमारी, और ये नकीरा में लिखी हुई है। दुआएं और सलामती, यानी देखिए मुरक्कब अतफी आ गया इसके साथ, सलामती, दुआएं और सलामती किन पर, किनकी बात हो रही है, किन पर दुआएं और सलामती होनी चाहिए। आगे देखिए खबर उसकी बता रही है कि सबसे मुअज़्ज़ज़ पैगंबरों पर, तो पहले मुब्तदा का तर्जुमा हो गया अस्सलातु वस्सलाम, तो ये मुरक्कब अतफी हो गया। मुरक्कब अतफी में हमने ज्यादा बात नहीं की थी। मुरक्कब अतफी ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें दो अस्मा को मिलाया जाता है कुछ मखसूस हरूफ से, जो कि अव्वल, वाव, सुम्मा इस तरह के होते हैं। इसकी एक लिस्ट दे दी है, तर्जुमे के साथ अपना देख लीजिएगा, और तरह तरह के जुमलों में काम आएगी आगे जाकर। हम लोगों ने बहुत से जुमले लेने हैं जिसमें उनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अस्सलातु वस्सलाम, दुआएं और सलामती किस पर, अब देखिए अला अशरफिल मुरसलीन, हमने क्या किया, पहले मुरक्कब जारी कर लिया, अला अशरफी सबसे, पर का तर्जुमा पहले हुआ अला, उसके बाद हुआ अशरफी सबसे मुअज़्ज़ज़, किन पर, पैगंबरों पर, अला अशरफिल मुरसलीन। जिस तरह ये खबर बन गई, तर्जुमा मैंने बता दिया, इस तरीके से आपने करना है। आगे देखिए इन जुमलों के तर्जुमे को देखते हैं। इन मिसालों में आपको पिछले असबात में लिए गए कुछ मुरक्कबात भी नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर है, बेशक अहमद के दो लड़कों की गाड़ियां नहीं है। याद रखें, अहमद के दो लड़के तो हैं, लेकिन उनके पास हो सकता है दो गाड़ियां ना हो। पिछले सबक में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ देखें, दो गाड़ियां नहीं, उनकी गाड़ियां, दो से ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती है, तो गाड़ी में तर्जुमा करना है हमने यहाँ पर। तो क्या है, देखिए बेशक अहमद के दो लड़कों की गाड़ियां क्या हैं, कैसी हैं, अच्छी हैं, नई हैं, पुरानी हैं। तो खबर हमें इस तरह तयन करें अपनी मुब्तदा को, इन सय्याराति वलद अहमद, ये हो गया पूरा हमारा इसम इन्ना। और इसम इन्ना में क्या है, इन्ना की वजह से ये जो हमारा मुदाफ था शुरू वाला, ये हालत नसब में चला गया। सय्याराती जो है मैंने आपको पहले बताया गैर आखिर की जमा मुअन्नस सालिम है, तो जब भी जमा मुअन्नस सालिम में हालत नसब में कसरा लेते हैं, तो ये पूरा मुरक्कब हमने उसी तरतीब से किया जो हमने सीखा था। अहमद के दो लड़कों की गाड़ियां, तो हमने इस पूरे मुरक्कब का तर्जुमा उस तरीके से किया जिस तरीके से हमने सीखा था। लेकिन इन्ना लगाने के बाद हमने इसे मुब्तदा जो है हमारा इन्ना का इसम बन गया, और वो हालत नसब में चला गया, तो ये पूरा हालत नसब में होगा। और उसके बाद उसकी खबर लगाई जो कि हालत रफा में होगी, जदीदतानी। और मैंने बताया था आपको कि खबर जो होती है हमने नकीरा रख ली है यहाँ पर, और नकीरा होने की वजह से इसमें है कि मीनिंग आ गए हैं। आगे देखिए अगली मिसाल में, जैद की दो बहनों की किताबें गुम हैं, उनको जाया कहते हैं, जाया कहते हैं। इनका तर्जुमा देखें, जैद की दो बहनों की किताबें कहाँ हैं, कैसी हैं, नई हैं, इस तरह ये सवाल करें ना, तयन किया हमने। कुतुबु उख्त यज़ीदिन दाबिअतु, ये बन गया इसका तर्जुमा। अब यहाँ देखें पूरा हालत रफा में होंगे, ये वाला मुरक्कब इजाफी थोड़ा बड़े वाला मुरक्कब इजाफी है जो कि हमने लिया था। कुतुबु उख्त यज़ीदिन, जैद की दो बहनों की किताबें, ठीक है ना। आगे दाबिअतुन गुम है, उसको हमने नकीरा बना दिया खबर को, और हालत रफा में ही होती है खबर। कुरान हमारी और तुम्हारी अजीम किताब, कुरान हमारी और तुम्हारी क्या है, अजीम किताब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तिस्ना का फायदा है। आगे देखें, बेशक अल्लाह ही गैब का जानने वाला है, इसमें दो जुमलों का इकट्ठा इस्तेमाल हो गया। इन्नल्लाह हुवा मुब्तदा हो गया, आलिमुल गैबी, ये एक पूरा जुमला इसके अंदर आ गया, आलिमुल गैबी खबर हो गई। व हुवा इंदहु इल्मुस्सा, और उसके पास ही किसका इल्म है, क़यामत का। क़यामत को साथ आ गया भाई यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप दो जुमलों को भी देखें, दो जुमले एक जुमले के अंदर आ गया। हामिद और महमूद दो नए तालिब इल्म है, और वो दोनों, ये भी दो जुमले हैं, दो जुमलों का इसके अंदर है। इसमें मुरक्कबात भी आप देख सकते हैं, हामिद और महमूद मुब्तदा क्या है, तालिबान जदीदान है, नए तालिब इल्म है। आगे अगला जुमला कहता है वहुमा अखवा ज़ैद बिल आलम, और वो दोनों आलिम ज़ैद के भाई हैं।
अहमद के मकान का दरवाज़ा हमारे घर के सामने है। इसका तर्जुमा देखें, बाबू बैत अहमद, ये हमारा देखें मुरक्कब है और इसमें हमने मुब्तदा कर दिया, मुरक्कब थोड़ा बड़े बोला, मुरक्कब काफी से मुब्तदा के तौर पर लेके आ गए। तमाम बनती कहाँ है, अहमद के घर का मकान का दरवाजा कहाँ है, हमारे घर के सामने, ठीक है ना। इस तरीके से हमने तयन किया, तर्जुमा किया, पहले आपने मुब्तदा का तर्जुमा किया, खबर का किया। आगे भी हम लोग मजीद मुरक्कबात जो रहते हैं, मुरक्कब जारी भी हमने ले लिए, अब आगे होंगे तमाम मुरक्कबात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, उसकी भी एक स्लाइड बना रही हूँ और बिस्मिल्लाह ताला आपसे वो शेयर करूंगी। अब तक जितना सीखा है, जिस तरीके से कवायद लिए हैं, उनका तर्जुमा करना सीखें और उन्हें समझें। जुमले के अंदर कुछ जुमले अपने जहन में सोचें, उर्दू के अरबी बनाना सीखें, कुछ अरबी के जुमले पढ़ें कहीं से, किताबों से, नेट से, और उनका जुमला जो है उनको तर्जुमा उर्दू में करना सीखें। तो आपको कवायद के मुताबिक जो कवायद सीखें, कम से कम उन कवायद, जब आप कोई भी रीडिंग करते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं तो उन कवायद को मद्देनजर रखें जो हमने सीख ली है। तो बाकी आगे जुमले जो है मुख्तलिफ, जितने भी हम जो तमाम तरकीब ले लेंगे ना अपनी, तो हम तमाम तरकीब को जुमले का हिस्सा बनाएंगे और मज़ीद उसमें इजाफा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।